Okay, everybody, good morning. So, today we are going to start with our exercise 4.3. Although we have discussed quadratic formula, but I am going to discuss it again because in 4.3 we are going to apply quadratic formula. So, just look here. Now, what is quadratic formula? Quadratic formula is used to find out the roots of a quadratic equation, or we can say quadratic formula is used to find out zeros of a quadratic equation, है ना? क्या होता है हमारा quadratic formula? This is our quadratic formula, under root b square minus 4ac upon 2a, है ना? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, है ना? तो x की वैल्यू वी नीड टू फाइंड x की वैल्यू, देन वी कैन अप्लाई दिस quadratic formula. If we have a quadratic equation, right, then we can apply quadratic formula to find out the roots or zeros of the quadratic equation. Okay, now a will be coefficient of x square, b will be coefficient of x, and c will be the constant term. So I am just taking one example. Okay, just taking one example how to apply the quadratic formula. Just have a look here, taking example from your book only. Okay, so let's just have a look here. Suppose I am taking this equation. This is just an example, okay, just to let you know what and how to apply the quadratic formulas. Alright, here this is our quadratic equation. We need to find the value of x. You remember I told you, अगर डिग्री 2 है तो जीरोस भी 2 होंगे, अगर डिग्री 2 है तो जीरोस भी 2 होंगे, यानी we can apply quadratic formula to find out the value of x. चलो, now just tell me what is a here. A will be coefficient of x square, which is 1. कुछ नहीं है तो 1 है. B will be minus 3 and C will be the constant term. I hope everybody is clear. Now just apply the quadratic formula. You don't need to write this, okay? Just have a look here. इसको कैसे अप्लाई करेंगे? Just look here. I'm just explaining. Minus, देखो minus लगाया. B की जगह B की जो वैल्यू है, B is what? minus 3. Then we have plus minus under root b square. B is what? minus 3. B square minus 4 into a. A is what? 1. C is again 1. Okay. Upon 2 into a. A is again 1. Again minus साइन था, इस फॉर्मूला में था b की जगह माइनस 3. b की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं माइनस 3. देन प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर. b स्क्वायर मतलब माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a इंटू c एंड देन 2. सो जस्ट हैव अ लुक हियर. माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस. अच्छा, ये प्लस माइनस क्यों लेते हैं? क्योंकि रूट से कोई भी वैल्यू जब निकलती है तो इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. रीजन क्या है? आप एक बात बताओ, अगर आप रूट 16 की बात करो, वो प्लस 4 भी हो सकता है और माइनस 4 भी हो सकता है. क्यों? क्योंकि प्लस 4 का स्क्वायर भी 16 होता है और माइनस 4 का भी स्क्वायर 16 ही होता है. तो रूट 16 मीन्स प्लस और माइनस 4. इट कैन बी एनीथिंग, राइट? इफ आई टॉक अबाउट रूट 9, इट कैन बी प्लस 3 और माइनस 3, क्योंकि प्लस 3 का स्क्वायर भी 9 होता है और माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 होता है. सो जस्ट हैव अ लुक हियर. नाउ माइनस 3 स्क्वायर विल बी 9. दिस इज 4 into 1, 4 upon 2. So this is root 5 upon 2. अब आप बोलोगे मैम दो जीरोस तो निकले नहीं. निकले ना, देखो जरा. पहला जीरो होगा 3 plus root 5 upon 2 and second zero will be 3 minus root 5 upon 2. Understood? That's how we are going to apply the quadratic formula. Now I am going to talk very important thing. We will talk about discriminant. क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, किस कैसे उसको हम डिनोट करते हैं और इसका क्या यूज है? वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग. ओके, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ऑलराइट, सो जस्ट हैव अ लुक हियर. नाउ discriminant we are going to find first. What do you mean by discriminant here? Just have a look here. Okay, this b square minus 4ac is discriminant.
ओके, दिस b square minus 4ac is what we call discriminant. ओके, डिस्क्रिमिनेंट इज डिनोटेड बाय d और ये होता है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac. इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, अब क्या यूज है इसका? आई एम जस्ट टेलिंग यू. एक बात बताओ बच्चों, अगर ये रूट के अंदर वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो जाए, सपोज हो जाए, तो क्या होगा? माइनस बी प्लस 0 करोगे तो भी माइनस बी अपॉन 2a वैल्यू मिलेगी, और माइनस बी माइनस 0 करोगे तो भी आप माइनस बी में चाहे प्लस 0 ऐड करो चाहे माइनस करो, यू विल ऑलवेज गेट माइनस बी अपॉन 2a, है ना? यानी क्या होगा? x की दोनों वैल्यूज क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी. अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल? अगर इसकी वैल्यू इस b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो गई तो क्या होगा? आप माइनस बी में एक बार प्लस 0 लोगे, एक बार माइनस बी माइनस 0 लोगे, आप प्लस करो 0 चाहे माइनस करो, x की वैल्यू तो माइनस बी अपॉन 2a रहेगी, सेम वैल्यूज आएंगी. यस, सो इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, इसका क्या मतलब है? टू equal and real roots you will get. Two equal and real roots exist. पहली चीज. सेकेंड, अगर मैं बोलूं बच्चों b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू सपोज माइनस 4 आ जाए यहाँ पे, क्या होगा? आपको पता है रूट माइनस 4 क्या होता है? नो, आई कैन नॉट डिटरमाइन. मुझे पता है अगर मैं प्लस 2 लूंगी तो प्लस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, और अगर मैं माइनस 2 भी लूंगी तो भी माइनस 2 का स्क्वायर तो 4 होता है. रूट में माइनस 4 आई डोंट नो हाउ टू फाइंड. यानी रूट में कभी भी हम नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेते हैं. नेगेटिव वैल्यूज मीन्स लेस देन 0. इसका मतलब अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जब तुम कैलकुलेट करो और अगर वो लेस देन 0 आ जाए यानी नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब क्या है? नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, राइट? और अगर इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तब तो हम करते हैं ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यूज. तो क्या होगा? आपकी जो भी वैल्यू होगी कि एक तो हो जाएगा, एक बार आप रूट 4 इज व्हाट 2, सो आप ऐसी वैल्यूज दोगे, है ना? सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस बी प्लस 2 अपॉन 2a एंड माइनस बी माइनस 2 अपॉन 2a. दो अलग अलग वैल्यूज हमको मिल जाएंगी. सो आप क्या बोलोगे इस चीज को? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट. तो क्या बोलोगे इस चीज को? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट. टू डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स exist. I hope everybody is very much clear with this, right? Okay, now let's start. ऐसे मैंने ये चीज पहले एक्सप्लेन की हुई है ना? पहले वीडियो में I have already explained this thing, but I am just, I just wanted you to revise it again. That's why I have just explained it again. Okay, so let's just start now. So we are starting with exercise 4.3. Now, first question: find the roots of the following equation by the method of completing square. Class, I told you earlier also, method of completing square नहीं है हमारे सिलेबस में. We are going to apply either middle term splitting or quadratic formula. So just look here. हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम अपनी इक्वेशन लिखेंगे. अब इसमें क्वेश्चन में बोला है if they exist, it means हो सकता है no real roots exist वाली कंडीशन आ जाए. So सबसे पहले हम d कैलकुलेट करेंगे. b is what? b square minus 4ac. अच्छा, b will be what? देखो यहाँ पे लिख लो. a is 2, b is minus 7 and c is what? 3. x square का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट minus 7 which is b, c is constant term. Now let's just solve it. Minus 7 square minus 4 into a into c. Understood? This is 49. 4 to 8, 8 3 is 24. This is 25. चलो, ये तो पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं. जब भी ग्रेटर देन 0 आता है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, यानी वी हैव टू सॉल्व इट. टू डिस्टिंक्ट रूट्स विल एग्जिस्ट, मतलब अलग अलग रूट्स आएंगे. चलो, लेट्स जस्ट अप्लाई द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज व्हाट? दिस इज आवर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. सीधे सीधी वैल्यूज पुट करो. माइनस, देन b, b इज अगेन माइनस 7. अच्छा, b स्क्वायर माइनस 4ac तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है.
So we are going to use this. We are not going to do it again, okay? 2 into a. A is what? 2. Now, this minus minus plus. Plus minus. What is the root of 25? 5. Plus minus 5. That's why we have taken plus minus 5 here. Upon 4. ठीक है, अब दो रूट्स निकालने, तो x की पहली वैल्यू एक बार प्लस 5 ले लो और एक बार माइनस 5 ले लो. So you will get 12 upon 4, which is 3, and 7 minus 5 is what? 2. 2 upon 4, which is 1 upon 2. I think everybody understood, right? So I'm just explaining third part also, okay? Second and fourth you will try it by your own, right? Okay. Now, question number 3, and just part 3, I'm so sorry, I'm explaining. This is 4x square plus 4 root 3x plus 3 equals to 0. Again, we will apply the quadratic formula, लेकिन उससे पहले हम discriminant की value find out करेंगे, which is b square minus 4ac. So what is our a here? A will be 2, b will be 4 root 3. बेटा x का coefficient 4 root 3 है. And constant term is 3. So let's just start. B 4 root 3 whole square minus 4 into A. A is what? 2. C is what? 3. So just look here. B square minus 4AC. B is 4 root 3 whole square minus 4 into A. A is 2 and C is 3. Now, how do you calculate 4 root 3 square? Easy. 4 root 3 into 4 root 3, which is 48. 4 4s are 16. 16 3s are 48. So this is 48. This is 24. Understood? So this is going to be what? This is also 24. So discriminant की value positive आ गई. It means we can find out the values, right? Okay. Now, x will be what? Minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. Okay. Now, minus b minus 4 root 3 plus minus b square minus 4ac is what? Root 24. Understood? So, and this is 2 into a. A is what? 2. So now let's just start. I'm so sorry, I have taken a as 2. It's not a2 here. A is 4 here. I'm going to take this equation like that, okay? I'm just taking this equation like that. I have changed. You can just try. I was just explaining. So a is what? 2. B is what? 4 root 3 and C is what? Constant term. So b square. B is what? 4 root 3 square minus 4 into a into C. So this is going to be root 24. Now how would we solve it? Okay. Now आप 24 को क्या लिख सकते हो? Just look here. आप 24 को क्या लिख सकते हो? Just look here. आप उसको लिख सकते हो 4 into 6 into 4, है ना? और अगर हम बात करें, I'm just telling you. Actually 2 root 6 you can write. So I'm just telling you how. Understood? ये पेयर बन गए तो ये तो पेयर से बाहर आ जाएगा, है ना? And this root 6 will remain here. So आपकी दो वैल्यूज क्या आएंगी? माइनस 4 रूट 3 प्लस 2 रूट 6 अपॉन 4, और एक बार हम क्या ले लेंगे? माइनस ले लेंगे. माइनस 4 रूट 3 माइनस 2 रूट 6 अपॉन 4. बाय मिस्टेक आई हैव टेकन 2 हियर. सॉरी. ओके, आप 4 लेके सॉल्व कर लेना. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. आपको सिर्फ मेथड में डिस्कस कर रही थी. ऑलराइट, इज दैट वेरी मच क्लियर विद यू? Okay, now moving on to question number 2. Find the roots of quadratic equation given in question 1 by applying the quadratic formula. Okay, so we have already done, right? Now, question number 3. Question number 3 is what? It's very easy question. ओके, आपको रूट्स निकालने हैं, क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, पर हमको तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई ही नहीं दे रही है. इट मीन्स we have to find the general form. We have to find the general form of this quadratic equation. कैसे? ax square plus bx plus c. Right? तो कैसे solve करेंगे? We will take the LCM. Now cross multiplying x into x, x square minus 1 is equals to 3. So this is going to be what? X square minus 1, ये x divide में हो जाके multiply में हो जाएगा. So this is going to be x square, ये plus 3x है, उधर जाके minus 3x हो जाएगा, ये minus 1 equals to 0. अब आपकी मर्जी, आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करें, आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से अप्लाई करें, एज यू विश यू कैन, बिकॉज दे हैव नॉट आस्क्ड टू अप्लाई एनी स्पेसिफिक फॉर्मूला. अगर एग्जाम में भी दे आस्क यू टू यू नो सॉल्व इट बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करो. अगर वो बोलते हैं कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से नहीं, आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करो, तो यू हैव टू डू दैट. और अगर वो बोलते हैं जस्ट फाइंड आउट द रूट्स, देन इट्स योर विश वेदर यू विश टू अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. तो यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दें, इजी रहेगा. ओके ओके, नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज आवर इक्वेशन. क्या हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं? नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना. तो हम क्या करेंगे इस केस में? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो जस्ट लुक हियर, माइनस बी प्लस माइनस b square minus 4ac upon 2a. we will apply this, है ना. अब देखो हमारा b क्या होगा? -3. a will be 1, b will be -3 and c will be -1. Understood? a will be 1, b will be -3 and c will be -1. so b is going to, देखो माइनस साइन हमारा फॉर्मूला में है, b की वैल्यू -3 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, -3 का स्क्वायर क्लास, b स्क्वायर मीन्स -3 स्क्वायर, 4 into a into c, वो भी माइनस का है, प्लीज टेक केयर. 4 into a into c. अंडरस्टूड? a was 1, b was -3 and c is what? -1. हमने फॉर्मूला लगाया माइनस, ये फॉर्मूले का साइन है माइनस, b भी हमारा -3 है, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4 into a into c, -1 है. ओके, अपॉन 2 into 1 is again 2, right? Okay. So you will get minus minus plus, right? Plus 3 plus minus under -3 square is what? Plus का 9. Now -4 into 1 is -4. -4 into -1 will be +4. -4. Just look here. -4 into 1 is -4. -4 into -1 is +4 upon 2. So this is going to be 3 plus minus root 13 upon 2. So हमारी दो वैल्यूज हमको निकालनी थी. हमारी दो वैल्यूज क्या होंगी? हमारी दो वैल्यूज होंगी, one will be 3 plus root 13 and second will be 3 minus root 13. Understood? 3 plus root 13 upon 2 and next one will be 3 minus root 13 upon 2. So x is equals to 1. एक तो हो जाएगी 3 plus root 13 upon 2 और एक 3 minus root 13 upon 2. I hope everybody is very much clear with that. Okay. Second question में थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ आप लोगों का, बट सॉल्व आप लोग करते हैं. ओके, थर्ड का सेकेंड पार्ट. Okay. Now you will take the LCM first. X plus 4, x minus 7. ये ऐसे होगा 1 into x minus 7 is x minus 7 and this is x plus 4 with minus 1. So please take care of this thing. देखो ये माइनस का साइन है, 1 with x plus 4 और ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन, यानी -1 से हम x plus 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो दिस इज इंपॉर्टेंट. जब हमने 1 से किया तो कुछ नहीं चेंज होगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाइड विद एनी नंबर इट विल रिमेन सेम. बट इफ आई टॉक अबाउट -1 क्लास, अगर -1 होता है तो साइन विल गेट चेंज. सो वी नीड टू टेक केयर. इसलिए बेटर है आप इसको x plus y into 1 -1 को आप -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ब्रैकेट लगा के करो, इट्स बेटर. दिस इज x plus 4. ओके, नाउ ये हमको दिया हुआ है 11/13.
सॉल्व करें, x माइनस 7 ब्रैकेट ओपन किया, माइनस का x, माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4 अपॉन, देखो ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी x पूरा मल्टीप्लाई होगा x माइनस 7 से। ऐसे ही करते हैं, फर्स्ट टर्म इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगी, सेकंड टर्म ये भी पूरी से मल्टीप्लाई होगी, ये देखो कैंसिल, सो यू विल गेट माइनस 11 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर 7x प्लस 4x x into x square, x into minus 7 minus 7x plus 4 into x 4x, 4 into minus 7 minus 28 is equals to 11 upon 30. Any confusions? Okay, now इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कर लेंगे, जस्ट लुक हियर। एक बात बताओ बेटा, क्या मैं इसको कैंसिल कर दूं? हाँ, ये माइनस 11, जस्ट लुक हियर, अगर इस 11 की बात करूँ, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में होगा तो कैंसिल हो जाएगा, but minus sign है अभी भी, okay, this minus, so here we will get this, right? now you cross multiply, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते 11 और माइनस 11 लेके तो भी you will get the same answer, don't worry. So 1 into 30 minus 1 into 30 class, this is minus 1, minus 1 into 30 is minus 30, and here 1 multiply with this x square, minus 7x plus 4x is what? Minus 3x, दिस इज माइनस 20। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले, लाइक टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 28, ये माइनस 30 इधर जाके प्लस का 30 हो जाएगा, सो दिस इज आवर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेटर रहेगा और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, बेटा दिस इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इज गोइंग टू बी इजी, राइट, सो वी विल अप्लाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। सो जस्ट लुक हियर, 1 into 2 is what? 2, हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, प्लस या माइनस करें तो क्या मिले? -3, सो 2 1 जा 2। मैं हर बार लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ जब भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करवाती हूँ, इसका x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इनटू कांस्टेंट टर्म जो भी प्रोडक्ट आएगा, क्या आया? 2, उसके दो फैक्टर्स लेने होते हैं, 2 के दो फैक्टर्स चाहिए, इट मीन्स तो उनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमको 2 मिले, एंड व्हेन वी ऐड और सबट्रैक्ट देम तब हमको मिडिल टर्म्स मिले, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं। सो 2 1 जा 2, कैन आई टेक 2 and 1, 2 और 1 को ऐड करोगे तो यू विल गेट 3, बट मुझे यहाँ -3 चाहिए, सो हाउ आई एम गोइंग टू डू इट? जस्ट लुक हियर, देखो हमने कुछ चेंज नहीं किया है, मुझे -3x चाहिए था तो मैंने लिया -2x और -1x, x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर, स्क्वायर करोगे -3x + 2, नाउ x कॉमन लिया, वी विल गेट दिस, यहाँ से मैंने -1 कॉमन लिया तो अंदर के साइन विल गेट चेंज, माइनस का साइन लिया है, दिस वाज पॉजिटिव, नेगेटिव टर्म विल बिकम पॉजिटिव, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा। नाउ x - 2 x - 1 इक्वल्स टू 0, पर ये तो फैक्टर्स निकले, वी नीड टू फाइंड द रूट्स, सो x - 2 इज इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 2 and x - 1 equals to 0, so x is equals to 1. I hope everybody is very much clear with the concept of this question. So next जो हम questions हैं उसमें I'll help you out with the formation of equations, but आप लोग solve उसको खुद करोगे, alright? तो वो हम next class में करेंगे। उससे पहले I just want every one of you to try at least solving these, forming these equations. कैसे बन रही है equation? अगर आपको question नहीं समझ आएगा, you won't be able to understand the solution also. तो तुम लोग एक बार try करो, हम next class में we will frame the equations, alright? So that's it for now. Thank you so much.